Hello, students, and my dear friends. I'm Dr. Shalini Shukla, and today is 21st of October 2021, Thursday. Inspiration of the day is not how long, but how well you have lived is the main thing. In today's discussion, we are going to cover these articles. So let us start with article number 1 given on page number 1. PSB told to push financial inclusion. So before the festive season, center government has asked all the public sector banks to aggressively target the financial inclusion. So basically here center government is saying to all banks, basically public sector banks, that they should expand the pension insurance coverage at the same time, as well as use the financial technology to extend the credit limit to the borrower. And why government is saying all these particular things to public sector banks? There are few reasons behind it. One of the important reason is that economy is recovering after pandemic, and there is a need of fund, there is a need of liquidity in the market to support the economic recovery, to support the economic growth. और इसीलिए सेंट्रल गवर्नमेंट पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बोल रही है कि आप अपने फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम के तहत डिफरेंट डिफरेंट जो सोशल सिक्योरिटी फंड्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो फाइनेंशियल सर्विसेज हैं, उनको एक्सपेंड करिए, उनको नूक्स एंड कॉर्नर्स तक पहुंचाइए. ऐसे इंडिविजुअल जिनके पास बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल नहीं है, उनको बैंकिंग सर्विसेज अवेलेबल करवाइए, जिससे कि उनके हाथ में फंड आए, उनके हाथ में मनी सप्लाई बढ़े और डिमांड जनरेट हो. एज आई डिस्कस्ड in our previous news discussion, that second wave of COVID-19 pandemic has actually impacted the demand side factors more in comparison to the supply side. अगर पहले वेव की बात करें तो उस पर्टिकुलर वेव में नेशन वाइज लॉकडाउन की वजह से सप्लाई साइड कंस्ट्रेंट आए थे, जबकि सेकेंड जो वेव आई इसमें गवर्नमेंट ने ऐसा कोई स्ट्रिक्ट लॉकडाउन इम्पोज नहीं किया, जिसकी वजह से सप्लाई साइड को उतना फ़र्क या सप्लाई साइड जो फैक्टर्स रहे उन पर इतना इम्पैक्ट नहीं पड़ा जितना कि डिमांड साइड पर पड़ा. Individuals were very uncertain, public were very uncertain, investors, businessmen were very uncertain about the economic prospect, about the situation of the pandemic, and that is why investment and expenditure as well as the demand has decreased. तो अभी गवर्नमेंट का जो बेसिक फोकस ये है कि मनी सप्लाई मार्केट में इंश्योर करी जाए, जिससे कि डिमांड बूस्ट हो. अपार्ट फ्रॉम इट, इसके अलावा फाइनेंशियल इंक्लूजन इज ऑल्सो वन ऑफ द टारगेट फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. गवर्नमेंट इस पैंडमिक को हमेशा से एक अपॉर्चुनिटी की तरह यूज़ करना चाह रही थी बहुत सारे रिफॉर्म्स लाने के लिए, और लाए भी गवर्नमेंट ने. फाइनेंशियल इंक्लूजन के केस में भी गवर्नमेंट वांट दिस पर्टिकुलर पोस्ट पैंडमिक रिकवरी टू बी यूज्ड एज द एरा ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन, जहां बैंक्स को डायरेक्ट किया गया है कि वो अपना फाइनेंशियल इंक्लूजन का दायरा बढ़ाएं. अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट जानते भी होंगे कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है, बट लेट अस डिस्कस इन वेरी ब्रीफ मैनर दैट इज व्हाट इज फाइनेंशियल इंक्लूजन. Financial inclusion basically refers to the availability, equality of the opportunity. Availability and equality of the opportunity for what? For accessing the financial services. It means how easily, how equitable manner financial services are available to the individual, to the public. It basically refers to the process by which individual and business organization and business mans can access appropriate, affordable and timely financial product and services. So these all includes the banking facility, loan facility, equity facility and insurance products. तो कितनी आसानी से, कितनी ईजली पब्लिक को, इंडिविजुअल्स को, बिजनेसमैन को बैंकिंग सर्विसेज, फाइनेंशियल सर्विसेज अवेलेबल हैं, दैट इज कॉल्ड एज फाइनेंशियल इंक्लूजन. बेसिकली होता है क्या, जो रूरल रिमोट एरियाज़ में जो इंडिविजुअल्स रहते हैं, जो अनएजुकेटेड हैं, मार्जिनलाइज सेक्शन जो है सोसाइटी का, दे डू नॉट हैव एक्सेस टू द इक्विटेबल और अफोर्डेबल फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसकी वजह से उनका जो फंड होता है, उनकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती हैं, मेन स्ट्रीम लाइन में नहीं आ पाती हैं और इकोनॉमी को भी उससे बेनिफिट नहीं होता. और कई सारे जो इंडिविजुअल्स हैं, दे गेट डिप्राइव फ्रॉम द बेसिक एमिनिटीज़ एज वेल एज द बेसिक
सोशल सिक्योरिटी प्रोग्राम दैट गवर्नमेंट इज प्रोवाइडिंग। और आपको याद हो तो आधार का भी पर्पस यही था, जन धन योजना जो आई थी उसका पर्पस भी फाइनेंशियल इंक्लूजन था कि दरवाजे दरवाजे तक फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेलेबल करा जाए, हर इंडिविजुअल के पास एक बैंक अकाउंट हो और उस वो ईजिली किसी भी तरह की बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज को अवेल कर सके। तो गवर्नमेंट वांट टू यूज दिस पर्टिकुलर अपॉर्चुनिटी टू इंक्रीज द स्पैन ऑफ फाइनेंशियल इंक्लूजन एज वेल एज, सो दैट इक्विटेबल society can be formed in terms of financial services। और बैंकिंग सेक्टर को भी इससे स्ट्रेंथ मिलेगी। तो देयर आर लॉट ऑफ रीजंस बाय फॉर विच गवर्नमेंट इज एक्चुअली पुशिंग पब्लिक सेक्टर बैंक्स फॉर एग्रेसिवली टारगेटिंग द फाइनेंशियल इंक्लूजन। और इसी को देखते हुए जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, दे ऑल हैव स्टार्टेड देयर क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम टू सपोर्ट द इकोनॉमी। तो इकोनॉमिक रिकवरी को सपोर्ट करने के लिए बैंक्स ने अपने क्रेडिट आउटरीच प्रोग्राम स्टार्ट कर दिए हैं, जहां गवर्नमेंट ने पब्लिक सेक्टर बैंक से ये भी कहा है कि अगर आप फाइनेंशियल इंक्लूजन का दायरा और बढ़ाना चाहते हैं तो यू कैन अडॉप्ट द को लेंडिंग मॉडल और को लेंडिंग अरेंजमेंट। को लेंडिंग मीन्स आप माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के साथ मिल करके, एनबीएफसीज के साथ मिल करके लोन की फैसिलिटी और डिफरेंट तरह की लोन स्कीम चला सकते हैं इंडिविजुअल्स के लिए, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग होते हैं उनके लिए। And for that, public sector banks have already started their credit outreach program in order to support the economy, and that is why they are planning for district-wise loan melas and similar other sort of programs from just like they have organized in October 2019 to improve the financial inclusion, to include the each and every area of the country, each and every individual or businessman of the country into the mainstream of finance or economy. So government has asked the banks to identify the individuals who are at the age of 21 years or above through the voter list, and those who do not have the bank account. So bank can open the account for such individuals under प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो बैंक्स को टारगेट दिए गए हैं कि आप आइडेंटिफाई करिए, वोटर लिस्ट से देखिए कितने लोग 21 ईयर्स एज के ऊपर हैं और जिनके पास बैंक अकाउंट नहीं है। अगर उनके पास बैंक अकाउंट नहीं तो डेफिनेटली दे आर नॉट एबल टू अवेल एनी सॉर्ट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज, तो आप उनका बैंक अकाउंट ओपन कराइए। सो इन ऑर्डर टू गिव अ डिजिटल पुश, स्टेट ओन्ड लेंडर्स हैव been given the target to provide the RuPay card to 100% account holder under the प्रधानमंत्री जन धन योजना। पहले तो अकाउंट खोलने को बोला गया है प्रधानमंत्री जन धन योजना के तहत, उसके बाद डिजिटलाइजेशन को या डिजिटल पुश देने के लिए इन केस ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज गवर्नमेंट हैज said all these state owned banks that if you are opening the account, then to make sure that every account holder under this pradhan mantri jan dhan yojana has the RuPay card, that debit card. तो 100% account holders should have that RuPay card under Pradhan Mantri Jan Dhan Yojana so that they can access the ATM and other sort of digital financial services। तो जिसमें से भी अर्बन रूरल एरिया सबको इंक्लूड करने की बात कही गई है। About 315 million RuPay card had been issued under this particular PMJDY account holders as of October 10, और इसके लिए भी बैंक्स को टारगेट दिए गए हैं। तो बैंक्स आर एक्चुअली देयर हाई हील्स, दे आर नाउ organizing different sort of outreach programs. So this is the festive push that government wants public sector banks to aggressively target and support the economic recovery as well as the economic growth। तो जैसा कि हमने डिस्कस किया, जो 21 ईयर से ऊपर के इंडिविजुअल हैं उनके पास बैंक अकाउंट, 100% अकाउंट होल्डर्स के पास रुपे कार्ड, इसके अलावा जो PMJDY अकाउंट होल्डर्स हैं उनको जितने भी तरह की पेंशन स्कीम है, इंश्योरेंस स्कीम है, उन सब सोशल सिक्योरिटी फंड्स में भी कवर किया जाए। किसान क्रेडिट कार्ड्स भी प्रोवाइड किया जाए, जो PM किसान बेनिफिशरीज हैं उनको। अपार्ट फ्रॉम इट, फॉर सपोर्टिंग ऑल दीज एक्टिविटीज, बैंक्स कैन गो विद को लेंडिंग अरेंजमेंट विद NBFCs एंड म्यूचुअल फंड एंड माइक्रो फाइनेंस कंपनीज। नाउ लेट अस लुक इनटू द आर्टिकल नंबर 2 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 4। इंडिया टॉक्स टफ pushes for lowering crude prices। जैसा कि हमने डिस्कस भी किया था पहले के कई सारे डिस्कशन में कि गवर्नमेंट विल टेक सर्टन डिसीजन इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ क्रूड ऑयल, क्योंकि क्रूड ऑयल के प्राइस जिस तरीके से बढ़ रहे हैं, दैट इज अ बिग चैलेंज इन फ्रंट ऑफ इकोनॉमी ड्यूरिंग द पोस्ट पैंडेमिक
रिकवरी। और पहले के डिस्कशन में हमने कल के या परसों के डिस्कशन में डिस्कस भी किया था कि इंडिया इज़ गोइंग टू रेज द वॉइस अगेंस्ट इंक्रीजिंग क्रूड ऑयल प्राइसेस इनटू द ओपेक मीटिंग, हमने डिस्कस किया था। और फिलहाल इस न्यूज़पेपर ने उसी आर्टिकल को, उसी न्यूज़ को कवर किया है। और आज के न्यूज़पेपर में, बिजनेस स्टैंडर्ड न्यूज़पेपर ने बहुत ज़्यादा न्यूज़ हैं रिलेटेड टू क्रूड ऑयल प्राइस, और जो रिफॉर्म्स गवर्नमेंट ले रही है, जो मेजर गवर्नमेंट ले रही है, उसको कवर करती हो। तो हमने क्या किया है, सारी न्यूज़ को कलेक्ट करके एक आर्टिकल में डिस्कस करने की कोशिश करी है, सो दैट यू कैन एक्चुअली रिलेट इट बेटर। तो न्यूज़ क्या है ये देख लेते हैं। इंडिया ने ओपेक की जो मीटिंग हुई थी उसमें अपनी जो वॉइस है फिलहाल के लिए क्रूड ऑयल प्राइस को रिड्यूस करने के लिए, दैट हैज़ been tough. It means India has taken the firm stance to increase in the global crude oil prices, which have been sent domestic retailer price spiraling. और इसीलिए इंडिया ने काफ़ी स्ट्रिक्टली इस फोरम में बोला है कि इंडिया is strictly against the increasing global crude oil prices. और इंडिया ने ये भी बोला है कि अगर इसी तरीके से क्रूड ऑयल के प्राइस बढ़ते रहे, अगर ओपेक नेशंस ने क्रूड ऑयल की सप्लाई को इंश्योर नहीं किया इन ऑर्डर टू रिड्यूस द प्राइसेस ऑफ ग्लोबल क्रूड ऑयल, इन दैट केस देयर विल बी द एनर्जी ट्रांजिशन प्लान। कंट्रीज़ के पास कोई ऑप्शन नहीं रह जाएगा, स्पेशली इंडिया के पास। दे विल अडॉप्ट द एनर्जी ट्रांजिशन प्लान वेयर दे विल shift to other energy, other types of energy or other energy sources, just like natural gas, solar power, hydropower. Apart from it, they will also switch the एक्सपोर्टर्स। तो हालांकि एक्सपोर्टर्स को स्विच करने का बहुत ज़्यादा चांस, बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल नहीं है इंडिया के पास, बट यस, इंडिया ने ये ज़रूर कहा है कि अगर प्राइस कंट्रोल नहीं होते हैं तो इंडिया इज़ एक्चुअली aggressively looking for energy transition plan where natural gas was act as a bridge fuel to move away from the polluting coal. तो यहाँ पर एनर्जी के बहुत सारे इश्यूज़ को टारगेट किया, सिर्फ क्रूड ऑयल प्रोसेस की बात नहीं, अगर हम देखें तो कोल की शॉर्टेज है उसको भी इस पर्टिकुलर मेजर से टारगेट करने की कोशिश करी गई है। हमारे जो यूनियन पेट्रोलियम मिनिस्टर हैं उन्होंने एम्फेसाइज किया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज एंड इट्स एलाई should factor in the view of consuming countries that want lower prices. तो बहुत क्लियरली बोला है सरा वीक में इंडिया ने कि इट्स अ टाइम दैट ओपेक नेशन शुड कंसीडर द डिमांड फॉर द ऑयल कंज्यूमिंग कंट्रीज फॉर रिड्यूसिंग द प्राइस, और जिसकी अगर वो नहीं करते और उस तरह से रिटेल प्राइसेस बढ़ते रहे हाईएस्ट लेवल पे, तो डेफिनेटली इंडिया हैव अ प्लान बी, क्लियरली इंडिकेट किया है। और उस पर्टिकुलर फोरम में हमारे जो पेट्रोलियम मिनिस्टर उन्होंने ये भी कहा कि अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें तो क्रूड ऑयल इंडिया का 20% कॉन्स्टिट्यूट करता है टोटल इम्पोर्ट बिल का, एंड जिसकी वजह से जो फ्यूल इम्पोर्ट बिल है वो अप्रॉक्सीमेटली $24 बिलियन तक पहुंच गया है इन द क्वार्टर दैट हैज़ एंडेड ऑन जून 2021, जो कि पहले $8.8 बिलियन था। पिछले साल इट वॉज 8.8 बिलियन, जो कि इस साल 24 बिलियन तक पहुंच चुका है। उसका सीधा सीधा रीज़न ये है जो सप्लाई रिस्ट्रिक्शन डाल रखा है ओपेक नेशन ने, जिसकी वजह से जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो इंक्रीज कर रहे हैं शार्पली। सो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हाउएवर सेड द प्रेजेंट सर्ज इन डिमांड इज अ रिफ्लेक्शन ऑफ कंटिन्यूइंग डिपेंडेंस अपॉन द ऑयल। तो अगर ऐसा है और जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं, एक्सपोर्टिंग कंट्रीज हैं, दे आर नॉट थिंकिंग, if they are not thinking to reduce the price, so Puri reminded how global crude oil prices fell to $19 barrel when lockdown were imposed in the March 2020. तो ऐसा ना सोचें प्रोड्यूसर्स कि वो जब चाहें तब अपना सप्लाई रिस्ट्रिक्ट करके प्राइस बढ़ा सकते हैं। अगर कंट्रीज़ ने अपना एनर्जी ट्रांजिशन प्लान एग्जीक्यूट करना शुरू कर दिया, देन उनके जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस हैं वो वैसे ही क्रैश कर जाएंगे जैसे कि पैंडेमिक की फर्स्ट वेव में किए थे, जबकि बहुत सारे नेशन ने, कंट्रीज़ ने लॉकडाउन लगा रखा था अपनी इकोनॉमीज़ में। उस समय अगर आपको पता हो तो उसमें नेगेटिव प्राइस हो चुके थे क्रूड ऑयल के। अगर आपको नहीं पता है तो देयर इज़ अ सेपरेट वीडियो इन डिस्क्राइब सेक्शन, ब्रेंट ऑयल क्राइसिस या क्रूड ऑयल क्राइसिस, आप उसको जा करके देख सकते हैं। तो उसी के बाद से जो
प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ हैं उन्होंने अपने सप्लाई को रिस्ट्रिक्ट कर दिया था, और इवन उन्होंने कई बार टारगेट भी किया कि इंडिया ने जब उनसे रिक्वेस्ट करी ओपेक नेशन से कि देयर शुड बी द प्राइस रिडक्शन, देयर शुड बी नो रिस्ट्रिक्शन ऑन सप्लाई सो दैट प्राइस ऑफ द ग्लोबल क्रूड ऑयल प्राइसेस कैन बी नॉर्मलाइज, कैन बी मॉडरेटेड। तो सऊदी अरेबिया ने ये रिप्लाई किया था कि जब जो क्रूड ऑयल के प्राइसेस क्रैश हुए थे, 90 बैरल तक पहुंच गए थे, $19 बैरल तक पहुंच गए, तो उस समय इंडिया ने जो स्टोरेज किया था इंडिया उसको अब यूज़ करे। तो इस तरह के बहुत सारे इंटरनेशनल डेलिब्रेशंस होते रहते हैं, लेकिन फ़िलहाल के लिए एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट रखा है इंडिया ने, और प्रोड्यूसर्स को वार्न किया है कि आपकी जो आप ये इस समय 80 और 88 तक पर बैरल, 90 बैरल पर बैरल तक जो रेट जा रहे हैं, दैट इज़ ऑल बिकॉज ऑफ द डिमांड। और अगर आप इसी तरह से प्राइस को इंक्रीज़ करते रहेंगे तो डेफिनेटली कंट्रीज़ विल मूव इनटू द अनदर एनर्जी सोर्सेज एंड देयर विल बी लो डिमांड और लेस डिमांड, एंड देन द प्राइस ऑफ द crude oil will again crash, and that will be the very challenging situation for your countries, for countries like you, those economies are actually depending on the oil export only. So Union Petrol Secretary Mr. Tarun Kapoor said price disturbance or price volatility was not good for either producer as well as the consumer. So दोनों को ही नुकसान हो रहा है अगर प्रोड्यूसर इसी तरीके से प्राइस को वोलेटाइल बनाकर रखेंगे। सो इन दैट केस कंज्यूमर्स डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन जस्ट टू स्विच फ्रॉम अनदर एनर्जी सोर्सेस। और इसी रिफॉर्म को और इसी पर्टिकुलर क्रूड ऑयल की क्राइसिस को कब करने के लिए गवर्नमेंट अपने लेवल पर भी बहुत सारे रिफॉर्म्स ला रही है। कल भी हमने डिस्कस किया था कि गवर्नमेंट ने, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने जितने भी जो कंट्रीज़ हैं इंडिया में, जो कंपनीज़ हैं इंडिया में, ओएमसी जो कंपनीज़ हैं, जो स्टेट ओन प्राइवेट कंपनीज़ हैं जो बेसिकली ऑयल खरीदती हैं, रिफाइनरीज़ हैं, उनको बोला कि दे शुड फॉर्म अ कार्टेल। वो आप कार्टेल फॉर्म करिए और कार्टेल के बाद आप जो ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री से ऑयल खरीद रहे हैं उसके बाद उस पर नेगोशिएट करिए। कल अगर आपका कल आपने अगर न्यूज़ डिस्कशन सुना होगा तो उसमें पढ़ा भी होगा कि हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं उन्होंने बोला है ऑयल रिफाइनरीज़ को, ओएमसीज़ को जो कि इंडियन स्टेट ओन है, अपार्ट फ्रॉम जो प्राइवेट सेक्टर में भी काम कर रही है, उनको बोला है दैट दे शुड फॉर्म अ कार्टेल। और कार्टेल फॉर्म करने के बाद, जॉइंट वेंचर फॉर्म करने के बाद, ग्रुप्स फॉर्म करने के बाद, एसोसिएशन वॉट एवर वी मे कॉल इट, दे शुड नेगोशिएट विद द countries, they should negotiate with the companies from whom they are actually purchasing, and this cartel formation, group formation, association formation will basically increase their bargaining power, will basically increase their negotiating power, and after this cartel formation they can pressurize those countries to reduce the price. इसके अलावा, इस मेजर के अलावा पीएम ने ये भी अर्ज किया है दैट इंडिया शुड रिफॉर्म इट्स ऑयल और दिस पेट्रोलियम सेक्टर टू बी आत्मनिर्भर इन this particular realm. So India wants to increase domestic oil and gas production after it has undertaken reforms in the sector to attract the investment. Apart from farming the cattle, पीएम ने, या हम ऐसे कहते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ने ये भी कहा है कि अब टाइम आ गया है कि इंडिया को आत्मनिर्भर होना चाहिए अपने ऑयल और पेट्रोलियम की नीड्स को लेकर के, एंड दैट इज़ वाई इंडिया इज़ एक्चुअली doing certain reforms. So government is undertaking certain reforms in the sector to attract the more and more investment, private investment as well as foreign investment, and this comes at a time when countries crude oil import bill has zoomed over 3 times. तो आप सोच सकते हैं जो क्रूड ऑयल का जो बिल है वो 3 गुना से भी ज़्यादा हो चुका है पिछले साल के कंपैरिजन में। और क्या रेट चल रहे हैं इसमें क्रूड ऑयल के? $85 बिलियन पर $85 पर बैरल। और 19 बैरल $19 बैरल कब था? जब हमारा इकोनॉमिक लॉकडाउन हुआ था पैंडेमिक के फर्स्ट वे में। नाउ यू कैन इमेजिन 19 से $85 तक रेट इंक्रीज हो चुका है, एंड बिकॉज ऑफ दिस इंडिया का जो इम्पोर्ट बिल है वो 3 से 4 गुना बढ़ चुका है। तो फिलहाल के लिए इट इज द टाइम फॉर इंडिया टू बी आत्मनिर्भर इन केस ऑफ पेट्रोलियम एंड ऑयल नीड्स, एंड दैट इज वाई गवर्नमेंट इज रीइटरेटिंग दिस पर्टिकुलर process, and government is going to undertake certain reforms under this or for this in sector in order to attract more and more investment. This is the point of view of our prime minister.
और जिसके तहत अभी रिसेंटली, और ऐसा नहीं कि पहली बार हो रहा है, इससे पहले भी गवर्नमेंट ने एनर्जी सेक्टर के लिए बहुत सारे रिफॉर्म्स लिए। अगर आप पिछले 5-6 सालों में देखें तो बहुत तरीके की पॉलिसी लाई गई हैं, एक्सप्लोरेशन और लाइसेंसिंग को लेकर के, गैस मार्केटिंग को लेकर के, कोल बेड मीथेन को लेकर के, कोल के गैसिफिकेशन को लेकर के, इवन गैस एक्सचेंज के भी केसेस में बहुत सारे रिफॉर्म्स लाए गए हैं, माइनिंग के केस में बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए हैं, रिन्यूएबल एनर्जी हाइड्रो सोलर के केस में बहुत सारे रिफॉर्म लाए गए हैं, जस्ट टू मेक इंडिया सेल्फ रिलायंट इन केस ऑफ एनर्जी नीड। और इसी लाइन में जो हम यूएस के स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय हैं क्लाइमेट चेंज में जो आए थे, मिस्टर जॉन केरी, उनका ये कहना है कि दे आर सपोर्टिंग द इंडिया फॉर सोलर डेस्टिनेशन। तो ये आप मत सोचें कि बहुत इंडिया को पसंद करते हैं या बहुत फिलैंथ्रोपिक मैनर में कह रहे हैं। दे ऑल हैव देयर बेनिफिट्स। इनकी कंपनीज कई सारे सोलर पैनल बनाती हैं, जिसके केस में अगर इंडिया सोलर पावर में शिफ्ट करेगी तो इनकी कंपनीज को फ़ायदा होगा, इनकी कंपनीज से जो डिमांड है, बिजनेस है, वो बढ़ेगा, एंड दैट इज़ वाई ही इज़ सपोर्टिंग। सो फिलहाल के लिए यूएस स्पेशल प्रेसिडेंशियल इन्वॉय Mr. Kerry on Wednesday termed India as a red hot investment destination. For what? For solar power energy. So उन्होंने इंडिया को सपोर्ट करते हुए कहा है कि इंडिया इज़ अ रेड हॉट इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन फॉर सोलर सेक्टर, सेइंग द कंट्री हैज़ सेट एन एग्जाम्पल फॉर डेवलपिंग नेशन बाय रीचिंग द 100 गीगावाट्स ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी। तो इंडिया को एक एग्जाम्पल और एग्जाम्पलरी एग्जाम्पल के तौर पे पेश किया है मिस्टर केरी ने, कहा कि दे विल सपोर्ट द इंडिया फॉर एनी शॉर्ट ऑफ सोलर एनर्जी शिफ्ट। लेट अस सी हाउ इंडिया विल एक्चुअली मूव टुवर्ड्स एनर्जी ट्रांजिशन प्लान, और कितना सक्सेसफुल होता है इंडिया का स्टैंड ऑन ओपेक नेशन, जिसमें ओपेक नेशन को सप्लाई को फिलहाल से रिज्यूम करने के लिए स्टैंड लिया है इंडिया ने। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6। 20 days later consumers still face disruption as banks not ready। 2 महीने पहले अप्रॉक्सीमेटली या 1 महीने पहले आरबीआई ने बहुत सारे नॉर्म्स चेंज किए थे, रेगुलेशन चेंज किए थे, किस चीज़ को लेकर के? रिकरिंग पेमेंट्स को लेकर के। तो more than 2 weeks have passed since the Reserve Bank of India new guidelines on e-mandates for recurring payments came into effect, but consumers are still taking to social media platforms to complain about the disruption that they are facing। हालांकि इसका अनाउंसमेंट 1 या 2 महीने पहले हो चुका था, लेकिन जो इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ है वो 2 वीक पहले हुआ है। बहुत सारे रिकरिंग जो डिपॉजिट्स हैं, रिकरिंग जो पेमेंट्स होते हैं, इंस्टॉलमेंट के जो पेमेंट्स होते हैं, उसको लेकर के आरबीआई ने नॉर्म्स में चेंज किया था। बैंक्स को टाइम दिया गया था कि आप इतने टाइम के फेज़ में, 1 महीने के टाइम के फेज़ में आप जितने भी नेसेसरी अरेंजमेंट्स हैं अपने टेक्नोलॉजी में, अपने रूल्स बुक में, वो सब कर लीजिए। और एक डेट दी थी जब से ये इम्प्लीमेंट होगा, और उसके बाद से वो सारे रिकरिंग पेमेंट के जो रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे वो अप्लाई होंगे। तो 2 हफ्ते हो चुके हैं जब से ये न्यू जो गाइडलाइंस, जो ई मैंडेट आया है रिकरिंग पेमेंट्स को लेकर के, वो इफेक्ट में आ चुका है 2 हफ्ते से। बट consumers are still facing the number of glitches on these recurring payments. This comes as most stakeholders in the ecosystem have not put in place system in accordance with the new rules, resulting many transactions are not going through or many transactions are actually getting failed. And as per the industry sources, most banks are still not ready for this recurring payment। RBI ने अनाउंस तो कर दिया था करीब 2 महीने पहले, अनाउंसमेंट के बाद उसको 2 हफ्ते पहले उसको इम्प्लीमेंट भी कर दिया, बट इसके बाद भी बहुत सारे ऐसे बैंक्स हैं, स्पेशली जो छोटे बैंक्स हैं, वो अभी रेडी नहीं हो पाए इस नए रेगुलेशन को लेकर के। उनके सिस्टम रेडी नहीं है, उनकी जो सॉफ्टवेयर्स हैं दैट इज़ नॉट रेडी फॉर दिस पर्टिकुलर न्यू रेगुलेशन, एंड बिकॉज ऑफ दिस द कंज्यूमर्स आर फेसिंग द डिसरप्शन। अगर बिगर वंस की बात करी जाए, सम इवन द बिगर वंस हैव complied with the new regulation at a very last moment। तो छोटे बैंक्स जो हैं, जो छोटे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, फिनटेक कंपनीज हैं, वो तो कर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि बड़े बैंक्स ने भी इवन लास्ट मोमेंट पे इस तरह के चेंजेस किए हैं, एंड बिकॉज ऑफ दिस लास्ट मोमेंट चेंजेस कंज्यूमर्स आर फेसिंग लॉट ऑफ प्रॉब्लम, लॉट ऑफ challenges, and that is why जो लास्ट मोमेंट चेंज किया है बड़े बैंक्स ने, दैट इज़ नॉट अलाउइंग द पेमेंट एग्रीगेटर्स टू टेस्ट वेदर द प्रोसेस इज़ कम्प्लीटली फुल प्रूफ और नॉट। अगर पहले से 2 महीने पहले से प्लानिंग करी गई होती तो जो बैंक्स हैं, जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं, जो पेमेंट डिडक्ट कर रहे हैं, जो पेमेंट कलेक्ट कर रहे हैं, उनको ये
प्रोग्राम को और सिस्टम को टेस्ट करने का सफिशिएंट टाइम मिलता। लेकिन कुछ बैंक्स ने तो लास्ट मोमेंट पे चेंज किया, जिसकी वजह से जो पेमेंट एग्रीगेटर्स हैं दे हैवंट गेट द सफिशिएंट टाइम टू एक्चुअली टेस्ट दिस प्रोसेस, एंड बिकॉज ऑफ ऑल दीज रीजंस रिकरिंग ट्रांजेक्शन for international merchant are not going through at ऑल। तो नेशनल जो ट्रांजैक्शन है वो उसमें तो ग्लिचेस आ ही रहे हैं, इंटरनेशनल जो मर्चेंट हैं रिकरिंग पेमेंट को लेकर के वो तो हो ही ना। अराउंड 60 to 70% ऑफ द स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन फॉर रिकरिंग ट्रांजेक्शन्स आर नॉट गोइंग थ्रू एज पर द डेटा, एज पर द sources aware about this development, and definitely the blame has to be put on banks because बहुत ज़्यादा टाइम दिया था आरबीआई ने न्यू गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए, लेकिन इसके बाद भी बैंक्स ने गाइडलाइंस को प्रॉपर्ली इम्प्लीमेंट नहीं किया, प्रॉपर्ली कंप्लाई नहीं किया, जिसकी वजह से ये इंटरनेशनल और नेशनल मर्चेंट पेमेंट एग्रीगेटर्स कंज्यूमर्स दे ऑल आर फेसिंग द प्रॉब्लम्स ऑफ रिकरिंग पेमेंट और इंस्टॉलमेंट पेमेंट। और इन्हीं सब इश्यूज़ को देखते हुए जो पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया है वो उस आरबीआई के पास गई है और आरबीआई से रिक्वेस्ट करिए कि जो टाइम लाइन है वो फिर से एक्सटेंड कर दी जाए फॉर अप्रॉक्सीमेटली अबाउट 1 मंथ। बट फिलहाल के लिए आरबीआई ने क्लियरली मना कर दिया। आरबीआई ने कहा नहीं, आपको सफिशिएंट टाइम दिया जा चुका है, आपने अब उस टाइम पीरियड में जो भी चेंजेस थे वो नहीं किया, गाइडलाइंस में कंप्लाई नहीं किया, तो जो भी अब रिपरकशन होगा, जो भी इसके कॉन्सिक्वेंसेज होंगे वो बैंक्स को ही फेस करने पड़ेंगे। तो अब देखते हैं कि जो 70% के जो ट्रांजैक्शन फेल हो रहे हैं इन केस ऑफ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, और जो डोमेस्टिक कंज्यूमर्स भी जो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, चाहे वो पेमेंट एग्रीगेटर्स हों, चाहे वो मर्चेंट हों, चाहे वो कंज्यूमर्स हों, उसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा। हालांकि आरबीआई का क्लियर स्टैंड है, आरबीआई इज़ नॉट गोइंग टू गिव मोर टाइम, और आरबीआई का कहना है कि इन द लॉन्ग टर्म दीज रूल्स विल एक्चुअली लीड्स टू द बेटर कंज्यूमर एक्सपीरियंस, एंड दैट इज़ वाई आरबीआई इज़ नॉट इन फेवर ऑफ चेंजिंग दिस रूल or extending the timeline for it. Now let us look into the some other news clips. At 1.48 million EPFC's record net पेरोल इन अगस्त। तो अगस्त के महीने में एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम ईपीएफ बोलते हैं, ईपीएफ ने रिकॉर्ड सेट किया। कैसा रिकॉर्ड? हाईएस्ट नंबर ऑफ payroll registration. The formalization of the economy gained further moment in August with COVID-induced lockdown easing. The Employee Provident Fund (EPF) saw the net addition of approximately 1.48 million subscriber, and this is a record high. तो आप सोच सकते हैं कि अप्रॉक्सीमेटली इतने लोगों ने EPF में रजिस्ट्रेशन किया है। तो बहुत सारे इसके इंडिकेशन भी हैं, बहुत सारे इसके एडवांटेज भी हैं। एक तो फॉर्मलाइजेशन हो रहा है इकोनॉमी का, दूसरा ये है कि सोशल सिक्योरिटी जो बेनिफिट्स हैं वो भी एक्सटेंड हो रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी आप इसको मान सकते हैं। और अगर ये रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है तो कहीं ना कहीं इस बात का भी इंडिकेशन है कि लोगों को जॉब मिल रही है, एम्प्लॉयमेंट फिर से बढ़ना शुरू हो चुका है। और एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, इसका सीधा मतलब ये है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, इकोनॉमिक रिकवरी बढ़ रही है। तो ये भी इससे आप डेसिफर कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन ऑल्सो डेसिफर कि अगर ईपीएफ में रजिस्ट्रेशन बढ़ रहा है, एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ बढ़ रही हैं, और एम्प्लॉयमेंट बढ़ने की वजह से पब्लिक के हाथ में मनी सप्लाई होगा, मनी सप्लाई की वजह से फिर से डिमांड बढ़ेगी, एंड दिस virtuous cycle will go on. So this increase in the payroll has a significant indication as well as the impact on the formalization of Indian economy. तो social security benefits से लेकर के डिमांड बढ़ने तक के सारे एडवांटेज हैं इस पर्टिकुलर जो सब्सक्राइबर का नंबर इंक्रीज हुआ है इसकी वजह से। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। Future retail party to dispute with Amazon, says Singapore panel. So future retail must take part in arbitration over a commercial dispute with Amazon.com. A Singapore arbitration panel ruled on Wednesday. तो सिंगापुर में केस चल रहा था फ्यूचर और अमेजोन का लेकर के। अमेजोन ने इंडिया में भी केस किया, बट अमेजोन को इंडिया की कोर्ट में या इंडियन कोर्ट में बहुत ज़्यादा फेवरेबल डिसीजन नहीं मिला, एंड बिकॉज ऑफ दैट Amazon has shifted or gone to Singapore arbitration panel, जहाँ पर सिंगापुर आर्बिट्रेशन पैनल ने अभी फ़िलहाल के लिए जो वर्डिक्ट दिया है उसके अकॉर्डिंग फ्यूचर रिटेल को भी आर्बिट्रेशन में पार्ट लेना पड़ेगा, जो कि कॉमर्शियल डिस्प्यूट है, रिजेक्टिंग द इंडियन रिटेलर्स बिड टू अवॉइड द प्रोसेस। तो फ्यूचर रिटेल ने
इस पर जब जैसे ही वो सिंगापुर आर्बिट्रेशन पैनल में अमेजॉन गया, तो फ्यूचर ग्रुप ने कहा कि वी आर नॉट द पार्टी ऑफ इट, वी आर नॉट like Singapore, or we are not agreeing that Singapore arbitration panel should see this matter, we are rejecting this particular plea। तो उसको लेकर के सिंगापुर आर्बिट्रेशन पैनल ने क्लियर वर्डिक्ट दिया है कि अमेजॉन के इस पर्टिकुलर कमर्शियल डिस्प्यूट में फ्यूचर रिटेल इज अ पार्टी एंड दे मस्ट टेक पार्ट इन आर्बिट्रेशन of this particular dispute, and for that they have rejected the Indian retailers bid to avoid the process। और अगर आप कंटिन्यूसली न्यूज़ फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता होगा कि डिस्प्यूट क्या है। बेसिकली अमेजॉन इज ट्राइंग टू ब्लॉक द फ्यूचर्स डील ऑफ $3.4 बिलियन सेल। $3.4 बिलियन की जो सेल हुई थी, जो डील हुई थी, किसके बीच में? फ्यूचर ग्रुप और रिलायंस के बीच में। तो इसको लेकर के अमेजॉन ने केस किया था, लिटिगेशन फाइल किया था, और इंडिया में भी किया था। अमेजॉन का अपना ये कहना है कि ये जो डील हुई है ये एंटी कॉम्पिटिटिव है और अमेजॉन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। अमेजॉन इज अ सिग्निफिकेंट शेयर होल्डर फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी और अमेजॉन को इसमें इंक्लूड नहीं किया गया। दैट इज वाई दिस डील इज एंटी कॉम्पिटिटिव एंड दिस शुड डिक्लेयर नल एंड वॉइड। इंडिया में बहुत ज़्यादा फेवरेबल डिसीजन नहीं मिली और इसीलिए सिंगापुर आर्बिट्रेशन पैनल में अमेजॉन ने इस पर्टिकुलर प्लिया को दाखिल किया है। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। इंडिया स्टिक टू इट्स स्टैंड ऑन फिशरी फार्म सब्सिडीज। WTO में फिशरी और फार्म से रिलेटेड जो सब्सिडी इंडिया प्रोवाइड करता है अपने फिशरी जो बेनिफिशरी हैं या जो फार्म सेक्टर के जो बिजनेसमैन है, जो छोटे छोटे उद्योग हैं, उनको जो फ़िलहाल के लिए जो सब्सिडी प्रोवाइड करी जाती है उसको लेकर के इंडिया ने WTO में क्लियर स्टैंड लिया है। इंडिया ने कहा है कि इंडिया विल कंटिन्यू its stand on the ground of long pending issues pertaining to the agriculture and fisheries subsidy at the World Trade Organization, as per senior government officials on Wednesday। सब्सिडीज़ को लेकर के इंडिया को हमेशा से बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करने को मिला है और अगर WTO की बात करें तो सब्सिडी जो भी इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन या इंटरनेशनल ट्रेड में जो भी सब्सिडी का मैटर आता है दैट ऑल कम्स अंडर द WTO रेल्म। तो अभी फ़िलहाल WTO में एग्रीकल्चर फिशरी और फार्म सब्सिडी को लेकर के बहुत ज़्यादा नेगोशिएशन चल रहे हैं। इंडिया का अपना कुछ अलग स्टैंड है इस पर। आई एम नॉट गोइंग डील इन डिटेल इनटू दिस पर्टिकुलर मैटर, बट यस इंडिया का ये कहना है कि बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो कि इर्रेशनल सब्सिडीज़ प्रोवाइड कर रहे हैं ओवर फिशिंग, और जिसकी वजह से ओवर फिशिंग हो रही बहुत सारे कंट्रीज़ में, और ओवर फिशिंग की वजह से जो इंडिया के जो फिशरमैन हैं, जो इर्रेशनल सब्सिडीज़ हैं उसकी वजह से इंडिया के जो फिशरमैन हैं उनको नुकसान हो रहा है। तो फ़िलहाल के लिए जो एग्रीमेंट बनाया गया है WTO में सब्सिडी को लेकर के दैट इज़ नॉट इन फेवर ऑफ इंडिया, और इंडिया इस पर्टिकुलर शेप में, करंट शेप में इस सब्सिडी जो एग्रीमेंट है इसको साइन नहीं करेगा। इंडिया विल कीप ऑन इट्स स्टैंड on this long pending issues related to agriculture and fishery subsidy, क्योंकि इंडिया का क्लियर स्टैंड है कि आपका जो एग्रीमेंट है, जो WTO एग्रीमेंट फाइनलाइज कर रहा है, इस एग्रीमेंट की वजह से इंडिया के जो फार्मर्स हैं, इंडिया के जो फिशरीज हैं, उनको नुकसान हो रहा है। तो डेफिनेटली इंडिया इज़ नॉट गोइंग टू साइन दिस पर्टिकुलर एग्रीमेंट इन टू इट्स करंट शेप। तो फिलहाल के लिए आप इतना ही जानिए, इस न्यूज़ में ज़्यादा जानने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्लिप देख लेते हैं। बिटकॉइन डार्ट्स टू MT66K on historic ETF launch. So Bitcoin rallied again. Bitcoin rallied to a record, topping $66,000 for the first time as optimism surged for the greater mainstream acceptance in the wake of successful launch of the first exchange-traded fund for US investors. So ETF के लॉन्च के बाद से एक पॉजिटिव सेंटीमेंट्स डेवलप हुआ है अमंग द क्रिप्टो बाज़ार और क्रिप्टो और डिजिटल करेंसी मार्केट, जिसकी वजह से बिटकॉइन ने एक रिकॉर्ड हाई नंबर रजिस्टर या रिकॉर्ड हाई वैल्यूएशन रजिस्टर किया, दैट इज़ $66K फॉर द फर्स्ट टाइम। और रिसेंट टाइम में बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस ने, बहुत सारे बड़े बड़े बिजनेसमैन ने बिटकॉइंस को, या हम कह सकते हैं क्रिप्टो करेंसी को एक्सेप्टेंस दी है, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली क्रिप्टो करेंसी का जो मार्केट है वो बढ़ रहा है। और जो क्रिप्टो करेंसी के फाउंडर्स हैं, बहुत सारी कंपनीज, दे आर सेइंग दैट इट्स अ वैलिडेटिंग मोमेंट फॉर डिजिटल करेंसी
and Bitcoin has climbed to its highest atop a tide of pandemic era liquidity, speculative bets, and expectation of wider adoption by institutional investors. हालांकि बहुत सारे कंट्रीज जो हैं वो उसको अभी भी है, बहुत सारे इवन कंपनीज और कंट्रीज में भी बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है. इट इज़ स्टिल नॉट अ लीगल टेंडर, बट येस, जिस तरह से इसको लेकर के एक्सेप्टेंस बढ़ रही है, इसको लेकर के बैकअप बढ़ रहा है, इट इज़ मोस्ट लाइकली दैट इंडिया को बहुत जल्दी इस पर कोई स्टैंड लेना पड़ेगा. सो दैट इज़ ऑल फॉर टुडे स्टूडेंट्स. इफ़ यू वांट lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you.